Good evening, students. Today we'll be discussing a topic of GS Paper 3, Inclusive Growth. And along with this, we will be also seeing what are the kind of questions which have come from this topic in last 5 to 6 years. Fine. So your GS Paper 3, the syllabus says Inclusive Growth and Issues Arising from it. So we'll begin the discussion. So initially, I want you guys to have a look at, what are the questions which have been asked. As you can see over here, right from 2014, from the time the exam pattern changed to 2019, for 4 years this question was asked, except your 2015 and 18. So you can quite well see the importance of this topic. Okay, and the questions which have been asked, I guess that after doing this lecture with me, you will be in a position to attempt these questions. So it would be very nice, who are the the person who are watching this video, the civil aspirants. If you want to take benefit out of it, you should attempt these questions after going through this lecture of mine, and then send it to us through WhatsApp, or you can mail us, and we will definitely get back to you with we'll evaluate it and mark you on that points. So just to give an idea, you should take note of these questions, and then now we'll go straight away to the discussion. See, before going to inclusive growth, what I want to do is that I want to clear the idea of growth and development. This growth and development is also a very important topic of your syllabus. So straight away going to inclusive growth, before that I feel that you should have a fair idea about what are these terms. A lot of time we use these terms in a synonymously we use these terms, growth and development, or rather we use these terms together, growth and development of the economy. Okay, so just to tell you that growth and development both are not the same thing. If you think that yes, it is the one and the same thing, no, it is not. After going through this video, you will be in a position to make out difference between both these concepts. Okay, so growth is what? Growth is quantitative improvement. जब हम क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, जब हम नंबर्स की बात करते हैं, दैट वी हैव प्रोग्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हमारी प्रोडक्शन, हमारी इनकम, हमारी नेशनल इनकम, जो हम फिगर्स की बात करते हैं तब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, दैट वी हैव प्रॉस्पर्ड फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर. हाँ, हमारा जीडीपी इंक्रीज हुआ है, हमने एग्रीकल्चर में इम्प्रूव किया है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में हमने इम्प्रूव किया है. जब हम उसकी बात करते हैं तब वो ग्रोथ है. दैट इज क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट की जब हम बात करते हैं, दैट इज ग्रोथ. एंड व्हाट इज डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड? डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट. मतलब डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ इज एसेंशियल, नो डाउट अबाउट दैट, बट क्वालिटेटिवली यू हैव टू इम्प्रूव. आई मीन टू से दैट यू आर इंक्रीजिंग इन नंबर्स, दैट मीन्स आपको क्वालिटेटिवली आपका डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं. हैव यू प्रोग्रेस्ड? अगर आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉस्पर कर रहा है, अगर आपके लोग ज़्यादा यू आर एबल टू एजुकेट मोर एंड मोर पीपल, अगर आप जो जेंडर इम्बैलेंस है उसको प्रॉपरली करके सॉर्ट आउट करके यू आर एबल टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर मेन एंड वुमेन, उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट. फाइन. सो ग्रोथ है आपका क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट जस्ट इन नंबर्स. इट हैज़ नथिंग टू डू विथ क्वालिटी ऑफ लाइफ. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट enhancement of your standard of living in terms of your development, your physical, not only your physical but your mental development, that time we are talking about development. Okay, so इसीलिए आप differences, आप ये point देख सकते हो that when you are talking about numbers it is growth, when you are talking about social development, socially you are qualitatively enhancing yourself, then it is your development. So a country has to develop. Only growth is not sufficient. You have to develop, then only you can meet the global standards. For example, you have these kind of indices, human development index, gender related index. इसमें अगर आप अच्छा नहीं परफॉर्म करोगे, that means you are not developing. आपके यहाँ growth है लेकिन development नहीं है. So what is more vital? Now after this you will know what is more vital, growth or development. Development is definitely more vital. फाइन. हमें क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट करना है, हमें अपने एजुकेशन लेवल को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करना है, हमारे इंस्टीट्यूशंस बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में से होने चाहिए, हमें हेल्थ फॉर ऑल करना है,
इट शुड रीच द पुअरेस्ट ऑफ पुअर, वही है डेवलपमेंट. इट्स नॉट लाइक इट शुड बी स्कैटर्ड टू ओनली दैट टॉप मोस्ट लेवल, जो टॉप पार्ट ऑफ द सोसाइटी उस तक ही कॉन्सेंट्रेटेड है बेनिफिट्स. दैट इज नॉट डेवलपमेंट, दैट इज inequality. Fine. So we have to create equality, we have to create opportunities for all, then only we can develop as a nation. Now you can understand growing as a nation and developing. So now you got the difference between growth and development, and you know what is more vital. Fine. अब growth and development आपने समझ लिया है. उसके बाद अब मैं आपको ये समझाऊंगी कि इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट क्यों आया. ठीक है. And why we have come. Actually inclusive growth and development ही है, rather development ही है inclusive growth. लेकिन why we need inclusive growth and why not only growth and development. ठीक है. उससे पहले मैं आपको एक ये थ्योरी बताना चाहूँगी, ट्रिकल डाउन थ्योरी. वेरी मच रेलिवेंट. आप लोग के आंसर्स में भी यू कैन एनी टाइम यूज दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स इन योर essay राइटिंग एंड ऑल. सो दिस इफेक्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू, बिकॉज इस इफेक्ट को समझने के बाद इंक्लूसिव ग्रोथ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी. ठीक है. अब इस थ्योरी को समझते हैं. ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या है? ट्रिकल वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया में, और रादर हमेशा ये अर्ली ये जो एक बिलीवर एक थॉट था, एक स्कूल ऑफ थॉट है जो ये सोचता है कि अगर ग्रोथ है, अगर इकोनॉमी में ग्रोथ है तो इवेंचुअली डेवलपमेंट हो जाएगा. मतलब अगर आपके नंबर्स अच्छे हैं, अगर आपकी जीडीपी अच्छी है, नेशनल इनकम अच्छी है, तो ऑब्वियसली आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे, आप अच्छा स्पेंड करोगे इंफ्रा एजुकेशन में, क्वालिटी लाइफ लीड करोगे, आप हेल्थ पे भी स्पेंड कर पाओगे. तो दिस इज़ द थॉट विच इकोनॉमिस्ट हैव, कि अगर हाँ ग्रोथ है तो डेवलपमेंट हो ही जाएगी. ठीक है. इसको ट्रिकल डाउन बोलते हैं. मतलब ग्रोथ अगर होगी ऊपर लेवल पे तो डेवलपमेंट आके नीचे एकदम जो लोएस्ट ऑफ लोएस्ट है, पुअरेस्ट ऑफ पुअर है, उसको बेनिफिट मिल ही जाएगा. ये है ट्रिकल डाउन थ्योरी. इस एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पे ऐसे मैं आपको समझाऊंगी ये एक्चुअली कैसे होता है, इकोनॉमी में कैसे होता है. इकोनॉमिक ग्रोथ जो मैं कह रही हूँ अगर होगी तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा. वो कैसे होता है. ट्रिकल डाउन इफेक्ट थ्योरी क्या कहती है, जो रिचेस्ट होते हैं, ठीक है, जो रिचेस्ट जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है, गवर्नमेंट को उनको बेनिफिट्स देना चाहिए, टैक्स कट्स वगैरह देना चाहिए. ठीक है. अगर गवर्नमेंट उनको बेनिफिट्स देती है रिच को, तो वो क्या करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे. वो इन्वेस्टमेंट करेंगे कंपनीज़ में, उन फैक्ट्रीज़ में, उन सेक्टर्स में किसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? द पीपल हु आर इन सर्च ऑफ जॉब, अनएम्प्लॉयड पीपल. तो आप एक तरह से देख रहे हो ना, यहाँ पे बेनिफिट कर रही है गवर्नमेंट रिचेस्ट को, लेकिन उसका बेनिफिट लोएस्ट लेवल को मिल रहा है. क्यों? बिकॉज यहाँ पे बेनिफिट देती है तभी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट से जो जॉब्स क्रिएट होती है वो ये अनएम्प्लॉयड लोगों को मिलती है. ठीक है. सो ये आपका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है. ठीक है. तो उसी तरीके से इट वॉज बिलीव दैट इकोनॉमिक ग्रोथ अगर यहाँ पे होगी, ठीक है, तो डेवलपमेंट इन लोगों को डेफिनेटली होगा, इन लोगों का भला होगा, क्योंकि वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उन जो भी कंपनीज़ में, जो भी फैक्ट्रीज़ में, जो भी प्लांट्स मशीनरीज़ में करेंगे, वहाँ पे काम करने के लिए तो वो लोगों को हायर करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स को. तो ऑब्वियसली यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो दे विल बी एबल टू सपोर्ट देयर लाइवलीहुड. फाइन. ये थ्योरी है. तो अगर ये थ्योरी करेक्ट है तो हमें इंक्लूसिव ग्रोथ की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है. ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट ले आएगा. बट ये ट्रू नहीं है. इंडिया के केस में डेफिनेटली इट डिडंट वर्क आउट. फाइन. सो अब क्यों वर्कआउट नहीं किया ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं. वाई ट्रिकल डाउन थ्योरी फेल्ड इन इंडिया. उसका सबसे बड़ा रीज़न है एग्रीकल्चरल सेक्टर पे हमारी डिपेंडेंस. एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी डिपेंडेंस क्या है? बिकॉज देखो हमारा 60 से 70% ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, लेकिन वो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन करता है? सिर्फ 17 to 18%. वेयर एज आपका जो सर्विसेज सेक्टर है हमारा, वो कितना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को? मोर देन 55%. ठीक है. जबकि उसमें वी हार्डली हैव 15 to 16% ऑफ द पॉपुलेशन एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर. तो आप डिफरेंस देख लो दोनों का. ठीक है. आपका एग्रीकल्चर सेक्टर का भी, सर्विस सेक्टर का. तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे इतने सारे लोग हैं डिपेंडेंट, लेकिन उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एकदम कम है. और सर्विस सेक्टर में बहुत कम लोग एम्प्लॉयड है, लेकिन जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है. तो उस वजह से क्या हुआ है,
कि सारे जो बेनिफिट्स है किस सेक्टर में रह गए, सर्विस सेक्टर में रह गए, और वो नीचे जाके एग्रीकल्चर सेक्टर तक पहुंचा ही नहीं. इट डिड नॉट परकोलेट डाउन. वाई? बिकॉज उसका एक रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ हमने मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस नहीं किया. स्ट्रेट अवे हम सर्विस सेक्टर पे चले गए थे. तो ये जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था, दैट वी डिड नॉट हैव हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना डेवलप नहीं हुआ. बिकॉज अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा वेल डेवलप होता तो इट वुड हैव क्रिएटेड इनफ जॉब्स इन द इकोनॉमी. ठीक है, बट वो नहीं हुआ. सर्विस सेक्टर के डेवलपमेंट से क्या होता है, सर्विसेज सेक्टर में कौन एम्प्लॉयड रहता है, यू हैव टू हैव अ बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन. ठीक है, जबकि हमारा 70% तो जो क्राउड है, मोर देन 60-70% वी हैव ये जो रूरल अर्बन डिवाइड है हमारा, वी हैव पीपल लिविंग इन द विलेजेस हु डू नॉट हैव दैट अमाउंट, उस लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं है दैट दे कैन वर्क इन दिस सेक्टर. ठीक है, तो उस वजह से ट्रिकल डाउन थ्योरी हमारी फेल हो गई. बिकॉज यहाँ के जो लोग हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग हैं, दे कुड नॉट रीप द बेनिफिट्स ऑफ द एडवांसमेंट एंड द ग्रोथ विच वर एक्सपीरियंस्ड इन द सर्विस सेक्टर. फाइन. तो इसीलिए ट्रिकल डाउन थ्योरी हमारी फेल हो गई. अगर नहीं फेल होती तो वी वुडंट हैव कम विद अ कंसेप्ट लाइक इंक्लूसिव ग्रोथ. फाइन. सो नाउ इट इज़ वेरी क्लियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस क्या है, ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या है, एंड व्हाई इट फेल्ड इन इंडिया. नाउ वी कम टू द मेन टॉपिक, व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ. ठीक है, अब आप लोग का एक बैकग्राउंड बन गया है. ग्रोथ डेवलपमेंट आपने समझ लिया, ट्रिकल डाउन थ्योरी हमारे यहाँ वर्क नहीं की, ग्रोथ अपने आप डेवलपमेंट नहीं दी. तो अब हमें क्या करना है, जब ग्रोथ अपने आप डेवलपमेंट नहीं लेके आ रही है तब हमें इंक्लूसिव ग्रोथ की ज़रूरत है. व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्रोथ फॉर ऑल. अब आपने समझा कि मैंने कहा जो सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर का ही बेनिफिट हो, एग्रीकल्चर वाला जो हमारा लोएस्ट जो सेक्टर, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इन नीड ऑफ जॉब्स, जो इनकम अपनी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए वाई वी नीड दिस इंक्लूसिव ग्रोथ. ठीक है, इट इज़ ग्रोथ फॉर ऑल. मतलब अगर आप ग्रो करोगे और आपके सारे सेक्टर्स उस ग्रोथ से बेनिफिट होंगे, आपके सारे सेक्टर्स आपकी पूरी ऑल द स्ट्राटा, मीन्स ओवर हियर यू कैन सी दिस वर्ड मासेस. अगर पीपल का, हर क्लास ऑफ पीपल का भला होगा, दैट टाइम यू कैन से दैट येस दिस इज इंक्लूसिव ग्रोथ. इंक्लूसिव वर्ड से ही है, यू हैव टू इंक्लूड एवरी वन इन योर ग्रोथ. It cannot be concentrated to few section of the society. That is why we have come with this concept of inclusive growth or growth for all. ठीक है, over here you can see the benefits of growth should be more broad based, orientation towards masses and not only classes, means growth of all the people of the society. Equitable distribution. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो वेल्थ है, जो हमारी जो वेल्थ है कंट्री की, दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, बट एक्चुअली इट्स नॉट पॉसिबल, बट इट शुड बी एटलीस्ट एक फेयर वे में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो कि रिच शुड नॉट गेट रिचर एंड पुअर शुड नॉट गेट पुअरर और रैदर रिमेन पुअरर. ठीक है, बिकॉज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट पॉसिबल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, but it should be that at least everybody is in a position to reap the benefits of growth. इस तरीके की ग्रोथ होनी चाहिए. तो that was our objective. Because हमने क्या देखा, LPG के बाद, लिबरलाइजेशन के बाद, 1991 के बाद जब इकोनॉमी ओपन हुई थी, we had growth, we could see the numbers, but the reason for that, it was not inclusive. There were only certain section of the society benefited out of that. Fine. So that's why the policy makers, they this thought came that we have to have growth which is inclusive of all the sections of the society. We cannot let only certain strata of the society get benefited by growth. Fine. So now inclusive growth is clear. Growth for all, just simply growth for all, and the definition would come into your mind automatically. अब इंक्लूसिव ग्रोथ का कंसेप्ट हमने कहाँ पे इनिशिएट किया था, द एजेंडा कहाँ पे आया था, सबसे पहले 11th 5-year प्लान में. ठीक है, सो नाउ वी डोंट हैव दिस प्लान्स एनी मोर, वी हैव दिस नीति आयोग. सो या जो 11 जो हमारा प्लान था, वी हैड टोटल 12 प्लान्स. तो जो 11th प्लान का एजेंडा था इंक्लूसिव ग्रोथ. एज आई हैव ऑलरेडी सेड, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, यू हैव टू हैव a better standard of living, better quality of life for everyone, not only a certain section. So broad based improvement in the quality of life, and you have to include everyone. This was in our plan.
You have to, especially the poor, SC, ST, backward caste, minorities, women, you have to provide equal opportunity to all. Then only we can achieve inclusive growth. Fine. मतलब इन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को हमको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लेके आना है ताकि ग्रोथ के बेनिफिट्स जो है वो सब इंजॉय कर पाए. ठीक है. सो दिस पॉइंट यू हैव टू ऐड इन योर आंसर्स व्हेन यू राइटिंग अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ, दैट हाउ इट इनिशिएटेड. इट वाज एजेंडा ऑफ आवर 11th 5-year प्लान. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आंसर्स में हमेशा पूछा जाता है, रादर क्वेश्चंस में पूछा जाता है, हाउ कैन इंक्लूसिव ग्रोथ बी अचीव्ड? इट कैन बी अचीव्ड बाय employment opportunities. Number one, definitely you have to create employment for all, because if you have employment, you are able to support yourself, you will be come out of poverty, absolute poverty. Health services for all. Education, most important, education and skill development. Sustainable growth, there was a question also asked, how this inclusivity leads to this sustainability. Fine. So sustainable growth is something which you can enjoy for a long period of time. Means it should not be a growth which is restricted to a certain point of time. No, sustainability honi chahiye. Good governance, gender sensitive society. There should not be any kind of difference in between males and females. They should have they enjoy a kind of freedom, whether they are at home, whether they are at their workplace. You have to have special facilities for them. Improvement of standard of living of people through programs like मनरेगा, ये जो जॉब क्रिएशन का जो प्लान है, providing jobs to people. So this is very important. Plus the government flagship programs like Sarva Shiksha Abhiyan, National Rural Health Mission, Bharat Nirvan. Plus now you had this स्वच्छ भारत अभियान, अब आपका आत्मनिर्भर भारत भी है. तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, इन सब तरीके से आप इंक्लूसिव ग्रोथ एड्रेस कर सकते हो. सिंपली यू हैव टू रिमेंबर 4 सेक्टर्स. एम्प्लॉयमेंट आपको करना है, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. जस्ट कीप दिस 4 पॉइंट्स इन माइंड एंड यू कैन राइट इट डाउन वेरी वेल. अगर आपने इंक्लूसिव ग्रोथ अच्छे से समझ लिया, यू कैन राइट ऑल दिस. यू नीड नॉट मेमोराइज इट. इट इज़ समथिंग वेरी ईजी, एंड if you are thorough with your concepts, I don't think so you need to by heart anything. Fine. So this is the way how can inclusive growth be achieved. Programs, बहुत सारे programs, और कुछ भी लिख सकते हो, अपना जन धन योजना वगैरह, ये सब inclusive growth के ही programs है, to propagate, to help government achieve this. अच्छा, lastly we'll discuss the challenges. अब जैसे हमने अभी शुरू में पढ़ा था, अभी लास्ट स्लाइड में हमने जो पढ़ा है कैसे अचीव कर सकते हैं, तो वो अचीव जो करना है इन चैलेंजेस को हटाने के लिए ही हमें वो सब अचीव करना है. तो अभी मैंने पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, तो चैलेंज डेफिनेटली है कि प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं है. उसके बाद एजुकेशन नहीं है, इसीलिए हमको एजुकेशन को अपग्रेड करना है. स्किल डेवलपमेंट नहीं है, यू हैव टू प्रोवाइड देम स्किल प्रोग्राम्स, ताकि वो मैचअप कर पाए वो लेवल ऑफ स्किल. अगर इफ़ दे हैव टू कम्पीट. Infrastructure, social and physical. Social infrastructure, I'm talking about your hospitals, educational centers. ये सब जो प्रॉब्लम है, जो रूरल अर्बन डिवाइड जो हम कहते हैं कि वहाँ पे ये इश्यूज़ है, तो इसको हमको ओवरकम करना है अगर हमको ये अचीव करना है. तो गवर्नमेंट डेफिसिट स्पेशली इन बैकवर्ड रीजन्स, बिकॉज वहाँ पे इनफ दे डो नॉट प्रोवाइड इनफ काइंड ऑफ स्पेस इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती है बैकवर्ड रीजन्स में, तो उस वजह से वहाँ के लोग पिछड़े हुए रह जाते हैं. दे के नॉट कम आउट एंड परफॉर्म टू देयर फुलेस्ट. ठीक है. सो उसी लिए ये गवर्नेंस डेफिसिट है. देन जेंडर डिस्पैरिटीज़, दिस इज़ समथिंग वेरी यू कैन अंडरस्टैंड ऑन योर ओन कि हाँ जो अभी भी डिस्पैरिटीज़ है इन टर्म्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, उस वजह से भी वी आर नॉट एबल टू, बिकॉज अगर विमेन एम्पावर्ड नहीं है, इफ़ दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग इन ऑल द सेक्शंस, जो भी है हमारा हर जगह हम देखें पॉलिटिकल स्पेस में, अगर वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है एडिक्वेट, या फिर जो भी और भी बाकी जितने भी जगह है, इफ़ दे आर नॉट एडिक्वेटली बीइंग रिप्रेजेंटेड, दैट मीन्स वी हैव नॉट अचीव्ड आवर गोल ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ फुल्ली. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये सारे चैलेंजेस हैं विच वी हैव टू ओवरकम to reap the benefits of inclusive growth, that is growth for all.
So lastly, you can say is that it needs a kind of, culminated efforts from both the central and the state governments. They have to work together to create an enabling environment to achieve the results of, to get the benefits of inclusive growth. मतलब अगर दोनों state और central government साथ में काम करेगी तभी हम inclusive growth, we can have it for our, for the nation, and we can prosper. क्वालिटेटिव हमारा इन्हांसमेंट हो जाएगा. ठीक है. सो आफ्टर दिस व्हाट आई वुड से इज दैट यू शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस विच आई हैव सेड इनिशियली, एंड डेफिनेटली get it evaluated to make the best out of it. Fine. Tried my best to make it as simple as possible. So with this I end the discussion. Thank you.